بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی عزت و احترام کے قابل میرے معزز، میرے محترم، قابل عزت سامعین، حاضرین، اہل ایمان حضرات، آپ نے دیکھا اس دنیا میں اللہ کی قدرتیں، اللہ کے رنگ اور اللہ کے فیصلے کہ کس طرح وہ انسانوں کی روزی اٹھا کے کہاں رکھ دیتا ہے اور کیسے اجل کہاں جا کے لے کے پہنچاتی ہے۔ جب وقت موت آتا ہے تو دو باتیں یاد رکھیں، ایک وقت اور ایک جگہ یہ اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں کہ کس وقت، کس جگہ، کس کی روح قبض کرنی ہے۔ آج دیکھ لو کہ محترم اجمل صاحب کہاں پیدا ہوئے، کہاں بچپن گزرا، کہاں جوانی گزری اور زندگی کے 14 برس دیار غیر میں گزارتے رہے۔ مجھے یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ وہ وہاں رہ نہیں رہے تھے، وہ وہاں لکھا ہوا اپنا رزق ختم کر رہے تھے۔ اور آج دیکھو کہ جب وہ انہیں واپسی کا اہتمام ہو رہا تھا، جب ان کے انتظامات ہو رہے تھے، تو میں اب آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا انہوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ جب میرا پاسپورٹ بن جائے گا، ویزا لگ جائے گا، تو کیا انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں اس طرح پاکستان جاؤں گا؟ کتنے ان کے خواب ہوئے ہوں گے، کتنی ان کی چاہتیں ہوئی ہوں گی، کتنا انہوں نے گھر والوں اور بچوں کو یاد کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، یہیں سے سیکھ لو، یہ دنیا وفا نہیں کرنے والی، اس دنیا میں دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آقا کریم کا فرمان علی شان کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، ان کو صرف جملہ بازی نہ سمجھا کرو، ایک خطیب کا صرف وعظ اور خطاب نہ سمجھا کرو، بلکہ یہ باتیں اپنے پلے باندھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اور وہ دعوت عمل میں کیا دینا چاہتا ہوں، احادیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر خانے میں مسافر رہتا ہے۔ دنیا کمانا عیب نہیں، میری گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ چھاڑ دی جائے۔ اے الہ العالمین، جب دنیا میں تو نے یہ موت بھی رکھی ہے، قبر کا امتحان بھی رکھا ہے، قبر کا حساب بھی رکھا ہے، قیامت میں میزان عدل بھی لگانا ہے، پل صراط سے بھی گزارنا ہے، اور دنیا کی یہ رنگینی بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہے، نفس بھی رکھ دیا، شیطان بھی پیدا کر دیا، اور دنیا کی چاہتیں بھی ہمارے سامنے رکھ دی۔ اے الہ العالمین، اب ہم زندگی کیسے گزاریں؟ تو جواب آیا کہ یہ تمہاری زندگی گھڑیوں میں قید، منٹوں میں قید، دنوں میں قید، ہفتوں میں قید، مہینوں میں قید، سالوں میں یہ قید زندگی ہے۔ ہر چڑھتا سورج یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ میں تمہاری زندگی کا ایک دن ختم کرنے چڑھایا ہوں، اور ہر ڈھلتا سورج یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک دن میں لے کے جا رہا ہوں۔ اس قید زندگی کو آؤ ایک مرتبہ پھر قید کر لیتے ہیں۔
तवज्जो चाहूंगा कि इस कैद जिंदगी को एक मर्तबा फिर कैद कर लेते हैं। किस में कैद करें? तो सुनो, अल्लाह का ऐलान है कि तुम इस दुनियावी कैद जिंदगी को आज अगर मेरी मर्जी में कैद कर दोगे तो मैं कल तुम्हें बेकैद जिंदगी अता कर दूंगा। तुम्हें ऐसी जिंदगी अता कर दूंगा जो इस जिंदगी से बेहतर होगी। ऐलान होता है कि जो लोग ईमान वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, नेक काम करने वाले हैं, रब्बे कायनात ने उनके लिए बशारत रखी है, फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, कि उनके लिए बेहतरीन और पाकीज़ा जिंदगी की अल्लाह ने बशारत रखी हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये दुनिया फानी है, इससे हमने जाना है और कल के लिए तैयारी कर रखो। कोई एतबार नहीं इन सांसों का, कोई एतबार नहीं इन घड़ियों का। कोई ढलता सूरज वफा नहीं करता, दुनिया वफा नहीं करती। क्या आप अपने रिश्तेदारों को नहीं देखते कि जब आपको कब्र में उतारा, जब किसी को कब्र में उतारा जाता है तो किस तरह कुदाले और बेलचे भर भर के मिट्टी डालते हैं, और हर फर्द 3 चुल्लू मिट्टी तो लाजमन डालता है, सुन्नत को सामने रखते हुए। अजब मामला हमने देखा इस दुनिया का। जब आप जिंदा होते हैं तो जो दोस्त होता है मोहब्बत करने वाला, आपके कपड़े पे अगर कोई गर्द या जर्रा पड़ा हो तो वो आके झाड़ता है, अगर आपको नजर ना आए कहता है ठहरो भाई, तुम्हारे पीछे मिट्टी का कोई जर्रा पड़ा हुआ है, तेरे लिबास पे बुरा लगता है, मुझे झाड़ने दो। लेकिन यही बंदा जब कब्र में उतरता है तो वही दोस्त इस पर मन्नू मिट्टी डाल रहे होते हैं। फिर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कितनी मोहब्बत होती है बाप को बेटे से। अगर जवान साल बेटा उसके सामने दुनिया से जा रहा हो तो क्या कभी किसी बाप ने कहा कि मैंने एक रात इसके साथ रहना है? क्या कभी किसी माँ ने बेटी के लिए कहा कि ये बेटी मेरे बड़े नाजू से पाली थी, कब्र में इसे डर लगेगा, एक रात में इसके साथ रहूंगी? क्या कोई भाई किसी भाई के साथ 1 घंटा कब्र में गुजारने को तैयार होता है? कोई तैयार नहीं होता। लिहाजा ये दुनिया के आर्जी रिश्ते जिनको पालने के लिए न हम हलाल का ख्याल रखते हैं न हराम का ख्याल रखते हैं, तो दोस्तों क्यों ना आज हम उस रिश्ते को पालें, उस रिश्ते को संभालें, उस रिश्ते को मजबूत करें कि कब्र में किसी ने नहीं आना, अगर आना है तो मदीने वाले ने आना है। सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे और फिर पूछा जाएगा, मा कुंत तकूल फी हक के हाज़र रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बताओ अपनी जिंदगी में इस हस्ती के बारे में तुम क्या कहा करते थे। और मेरे दोस्तों, दरूद पढ़ने की आदत बनाओ। दरूद जितना भी ज्यादा पढ़ोगे इतना आपको फायदा होगा। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, 3 हिस्से में दीगर अज़कार करता हूँ, एक हिस्सा पर दरूद पढ़ता हूँ। सरकार ने फरमाया, बहुत अच्छा है, अगर तू इसे बढ़ा ले तो तेरे लिए और भी अच्छा हो जाएगा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आधा दरूद पढ़ूंगा और आधा हिस्सा बाकी जिक्र करूंगा। आपने फरमाया, बहुत ही अच्छा है, अगर तू और भी बढ़ा ले तो तेरे लिए और भी अच्छा हो जाएगा। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 हिस्से दरूद पढ़ूंगा, एक हिस्सा बाकी अज़कार करूंगा। आपने कहा, बहुत अच्छा है, अगर और भी बढ़ा ले तो तेरे लिए अच्छा है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं दरूद ही पढ़ता रहूंगा दीगर अज़कार पर। आपने कहा कि अब तू कामयाब हो गया, फला पा गया है। आका करीम ने फरमाया, वो शख्स रास्ता भूल गया, जन्नत का राह भूल गया, जन्नत का रास्ता उसे भूल जाता है जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल जाता है। फिर हजरात मोहतरम, कयामत का दिन आना है। फिर कयामत का दिन, जिस दिन सूरज आग बरसा रहा होगा, लोहा तांबे की तरह तपा हुआ होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, लोग दौड़ते हुए। अब तवज्जो से मेरी गुजारिश सुनिएगा, क़यामत का मालिक कौन है? अल्लाह की जात है। और ये दिन में हम 4 मरतबा फजर की नमाज में ये इकरार करते कि मालिक यौमिद्दीन, 12 मरतबा जोहर की नमाज में हम इकरार करते मालिक यौमिद्दीन, 8 मरतबा असर की नमाज में हम कहते मालिक यौमिद्दीन,
7 मरतबा मगरिब की नमाज में हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, 17 मरतबा इशा की नमाज में कहा जाता है मालिक यौमिद्दीन। ऐ इलाहुल आलमीन, मालिक तू है कयामत का। सूरज सवा नेज़े पे होगा, आग तपी, जमीन तपी हुई होगी और लोग अपने ही पसीने में टखनों तक, घुटनों तक, सीनों तक, बाज रवायात में अपने ही पसीने में कानों तक डूबे हुए होंगे, मगर कयामत शुरू नहीं होगी, कयामत बर्पा नहीं होगी। लोग एक दूसरे कहने वाला आवाज लगाएगा और देखते नहीं कि हम किस अजाब में पकड़े गए हैं, कितनी गिरफ्त में हैं, कितने अजाब में हैं। आओ ना अल्लाह के लिए कि अल्लाह के दरबार में किसी को सिफारशी ढूंढें। उस वक्त सिफारशी ढूंढा जाएगा, उस वक्त वसीला ढूंढा जाएगा, उस वक्त वसीला तलाश किया जाएगा और सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मुझे छोड़कर किसी और के पास जाओ। जितना गजबनाक मैंने आज अल्लाह को देखा पहले कभी नहीं देखा। फिर हजरत नूह के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि जितना आज अल्लाह गुस्से में है मैंने इसे पहले नहीं देखा। हर नबी अपना कोई ऐसा अमल याद करेगा और कहेगा कि उसके नतीजे में मैं अल्लाह के सामने नहीं जा सकता। करते करते हजरत ईसा तक आएंगे, वो भी कहेंगे किसी और के पास जाओ। खुदा की कसम अपने मुकद्दर पर नाज करो कि जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, जिस नबी के उम्मती हम हैं, जिस नबी के जमाने में हम रह रहे हैं, जिस नबी के जमाने में हम सांसें ले रहे हैं, जब उनके पास पहुंचेंगे तो सरकार फरमाते हैं फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी और के पास जाओ, इसलिए कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। रबिया दुनिया में हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया में जन्नत मांगे तो मेरा नबी दुनिया में जन्नती होने का ऐलान करता है और कल कयामत में मेरे सरकार फरमाएंगे कि फिर मैं सजदे में जाऊंगा। जब मैं सजदे में पड़ूंगा तो रब फरमाएगा उठा सोनिया सर सजदे से उठा, आज जो तू कहेगा वो माना जाएगा, आज जो तू कहेगा वो माना जाएगा। मालिक अल्लाह है मगर सिफारिश मुस्तफा की चलेगी। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अहादीस की रोशनी में बता रहा हूं। और फिर सरकार सजदे में पड़ेंगे, रब फरमाएगा तू सर उठा, जिसकी तू सिफारिश करेगा मैं उसे बख्श दूंगा, जिसके लिए तू कहेगा मैं उसे माफ कर दूंगा। फिर कयामत का हिसाब शुरू होगा। और मेरे दोस्तों आओ एक खूबसूरत बात बताऊं, नेकी का कोई मौका जाया ना किया करो। एक हदीस मुबारक पढ़कर मैं हैरान हुआ कि एक शख्स के अमाल तुले, उसके हिस्से में एक ही नेकी थी। अब वो फिर रहा था और एक और शख्स के अमाल तुलेंगे तो उसके नेकी के पलड़े में एक नेकी की कमी होगी और उसे कहा जाएगा कि अगर तू एक नेकी ढूंढ के ले आए ना तो इस पलड़े में आ जाए तो तू बख्शा जाएगा और तू जन्नती हो जाएगा। वो नेकी ढूंढेगा, कोई भी नहीं देगा। उस गजब में, और सुनो, अल्लाह फरमाता है मैं रहमान हूं, अल्लाह फरमाता है मैं रहीम हूं, अल्लाह फरमाता है मैं करीम हूं, अल्लाह फरमाता है मैं गफ्फार हूं, अल्लाह फरमाता है मैं गफूर हूं, अल्लाह फरमाता है मैं रज़ाक हूं, अल्लाह फरमाता है मैं मालिक हूं, अल्लाह फरमाता है मैं रब हूं, अल्लाह फरमाता है मैं बख्शनहार हूं। और जब कायनात बनाई तो कायनात जब बनाई तो अर्श के किनारे पे माथे पे लिख दिया गज़बत रहमती अला गज़बी, कि मेरे गजब पर मेरी रहमत गालिब है। अगर रहमत गालिब ना होती तो आज निजाम कायनात चलता ही ना। लेकिन पता क़यामत वाले दिन रब क्या ऐलान करेगा? रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कल यौम, बताओ ना आज हुकूमत किसकी है, और खुद ही ऐलान करेगा लिल्लाहि वाहिदिल क़हार। उस दिन रब फरमाएगा कैर वाले खुदा का आज इक़्तिदार है। उस दिन रब अपने आप को गफ्फार नहीं जाहिर फरमाएगा, कहार गफ्फार क्या कर नहीं पुकारेगा, रहमान और रहीम क्या कर नहीं पुकारेगा, कहार क्या कर पुकारेगा। तो उस दिन अंदाजा करो कि फिर भी
उसकी करम नवाजियां देखो। वो शख्स नेकी ढूंढता ढूंढता उस शख्स के पास आएगा और कहेगा कि क्या हुआ? उसने कहा मैं मीज़ान अदल से होकर आया हूँ। दूसरा कहेगा मैं भी होकर आया हूँ। तो फिर ये कहेगा कि मुझे एक नेकी की ज़रूरत है, मिल जाए तो मैं बख्शा जाऊँगा। उसने कहा मेरे पास नेकी एक है, ये तू ले ले, चल तेरा तो बेड़ा पार हो ना। तो वो नेकी लेकर जब आएगा ना, तो जब उसके पल्ले में रखी जाएगी और उसका पल्ला भारी होगा तो रब फरमाएगा कौन है जो इस मैदान हशर में इसको नेकी देने वाला है? मुझसे बड़ा रहम करने वाला कौन हो सकता है? जब उस बंदे को पेश किया जाएगा, इलाहुल आलमीन इस बंदे ने नेकी दी है, तो रब फरमाया तूने इसकी बख्शिश का सोचा है ना? खुदा की कसम एक दूसरे की खैर खाई किया करो, एक दूसरे के लिए नियतें पाक रखा करो, एक दूसरे के लिए पाक होकर रहो। तो रब फरमाएगा तूने इसके लिए नेक नियति की, तूने इसको नेकी दी, और मुझसे भी कोई बख्शनहार होता है, दोनों एक दूसरे का हार पकड़ो और दोनों जन्नत में चले जाओ। इसलिए मेरे दोस्तों, फिक्र आखिरत करो। फिक्र आखिरत में हर एक बात याद रखो भाई, ये सच्ची बात है, कोई लिहाज नहीं किसी का, कोई पता नहीं अगली घड़ी क्या होने वाला है, कोई पता नहीं अगले लम्हे क्या होने वाला है। किस पर हार्ट अटैक आ जाए, किसको जहरीला सांप डस ले, किसके साथ गाड़ी उल्टी हो जाए और किसका खून बंद हो जाए। हम कहते फलां मर गया, कहते क्या होया जी? ओ जी हार्ट अटैक होया। और किधर हार्ट अटैक? भाई रब कहता है दिला धड़कना छोड़ दे, बस दिल धड़कना छोड़ देता है तो दुनिया कहती हार्ट अटैक हुई। हार्ट अटैक नहीं, बस वो ऑर्डर कर देता है। इसी तरह जब वो कह देना वो लहू गर्दिश करना छोड़ दे, लहू जाम हो जाता है, फिर फरिश्ता आके पकड़ लेता है। इसलिए हजरात मोहतरम, फिक्र आखिरत में रहो, आखिरत की फिक्र करते रहा। दुनिया कमाओ मगर दुनिया को दामन में रखो, दीन को दिल में रखो।